تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں تم اس ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ ستارہ ہے میرے دل کا۔ جب آسمان سے ٹوٹا ہوا یہ تارا کسی ٹوٹے ہوئے دل کا ستارہ بنتا ہے تو محترمہ شبینہ ادیب کی شاعری وجود میں آتی ہے۔ شاعری کا ایسا معتبر نام جس نے ہندوستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کی اور بڑے باوقار طریقے سے کی، ان کا بہت لمبا تعارف پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن آئیے بانو دارا وفا کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں کہ میری خلوت میں جہاں ریت جمی پائی گئی، میری خلوت میں جہاں ریت جمی پائی گئی، انگلیوں سے تیری تصویر بنی پائی گئی۔ محترمہ شبینہ ادیب، استقبال کیجیے زوردار تالیوں سے۔ سنیں، اندھیروں کی ہر کوشش، اندھیروں کی ہر کوشش یہاں ناکام ہو جائے۔ میری آواز اگر پہنچے تو آپ اپنی آواز کو بلند کریں۔ اندھیروں کی ہر کوشش یہاں ناکام ہو جائے، اجالے ہر طرف ہوں، روشنی کا نام ہو جائے، اجالے ہر طرف ہوں، روشنی کا نام ہو جائے۔ میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے، میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے۔ میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے۔ شکریہ۔ میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے۔ بہت شکریہ بڑے بھائی راج کوشک صاحب نے، واقعی بڑی محنتیں۔ ہم ہر روز مشاعرے پڑھتے ہیں لیکن اتنی جو اچھی فہرست ہے، اتنے سینئر شعراء کی جو طویل فہرست ہے، یہ ایک رات کبھی یکجا نہیں کر پاتے، کبھی اکٹھا نہیں کر پاتے، لیکن ان کی کوششیں، ان کی کاوشوں کے لیے آپ ایک بار زوردار ان کے لیے تالیاں ضرور آپ کو بجانی پڑیں گی کہ یہ سچ بات ہے کہ یہ سب ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس خوبصورت محفل میں آج اتنے بڑے بڑے شعراء آپ سب کے بیچ میں ہیں، اور ان کی سرپرستی میں میں بھی آپ کو شعر سنا رہی ہوں۔ ملاحظہ کیجیے گا، 4 مصرے سر پیش کرتی ہوں، سنیں۔ حال کیا دل کا ہے، حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا۔ شکریہ۔ حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا، حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا، یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا، یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا۔ رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا۔ بہت شکریہ۔ گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بڑا ڈر سی رہی تھی کہ جو لوگ آگے بہت بڑے لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے بار بار یہ کہنا کہ آپ تالیاں بجائیے، آپ داد و تحسین کی صدائیں بلند کیجیے، لیکن میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی ہوں کہ آج کی شب مجھے دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے، میری حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ایک ایک شخص کو میں سلام کرتی ہوں، آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، پیش کرتی ہوں۔ ملاحظہ کیجیے گا، بڑی خوبصورت سماعتیں، کچھ اور کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی، سنیں۔ میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی،
नवाजिश। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी सलीके से आप सुन रहे हैं। एक गज़ल सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, इन दिनों जो गज़ल मैं पढ़ रही हूँ, मुलाजा कीजिएगा। बतौर खास चंद शेर पेश करना चाहती हूँ। जी इरशाद। सुनाओ, इजाजत है? पेश करती हूँ, सुने। जी बिल्कुल। जिनके चेहरे, सुने गजल सुना रही हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा हौसला बढ़ाएंगे तो पढ़ने में अच्छा महसूस होगा। जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे, मुझे मालूम है मौदा में शायरी भी सुनी जाती है तो कुछ कोशिश कर रही हूँ। जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे, गम में डूबी हुई जिंदगी हो गए। जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे, जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे, गम में डूबी हुई जिंदगी हो गए। दो बदन एक जान जिनको कहते थे सब, दो बदन एक जान जिनको कहते थे सब। सुन रही हूँ कि वो अजनबी हो गए। दो बदन एक जान जिनको कहते थे सब, सुन रही हूँ कि वो अजनबी हो गए। जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे। मेरी बहनें बैठी हैं, उनको शरीक करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ, बतौर खास सुने। सादगी के सबब ही उठाए हैं गम, अब न आएंगे दुनिया की बातों में हम। शेर सुने। सादगी के सबब ही उठाए हैं गम, अब न आएंगे दुनिया की बातों में हम। ठोकरों ने संभलना सिखाया हमें, ठोकरों ने संभलना सिखाया हमें। तजुर्बे राह की रोशनी हो गए। ठोकरों ने संभलना सिखाया हमें, तजुर्बे राह की रोशनी हो गए। जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे। शेर सुनाती हूँ, जिम्मेदारान बैठे हैं, वो शेर को पहुँचाए मैं जिनके लिए कहना चाहती हूँ, उनको शरीक करती हूँ और मुलाजा कीजिएगा। ये शेर पढ़ती हूँ। ये सियासत का बाजार भी खूब है, कौन कब रंग बदले भरोसा नहीं। सुने, ये सियासत का बाजार भी खूब है, कौन कब रंग बदले भरोसा नहीं। आप ही का सहारा चरागों को था, आप ही का सहारा चरागों को था। आंधियों की तरफ आप ही हो गए, आप ही का सहारा चरागों
खुदा की कसम ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं लोरी सुनाने के लिए इस वक्त खड़ी हो गई हूँ और आप सो से गए हैं। थोड़ा सा जाग कर सुनेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मैं जिंदा लोगों के बीच में शेर सुना रही हूँ और आप सब मेरे लिए मोहतरम है, इसलिए पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और हिम्मत कर रही हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। थोड़ा सा जाग कर सुनेंगे, हौसला देंगे तो वो सब सुनाऊंगी जो आप सब सुनना चाहते हैं। पेश करती हूँ, मुलाहाजा करो, देखो एक शेर सुनाती हूँ बतौर खास। पढ़ते बैठे हैं, मैं शेर पेश करती हूँ, सुने कि ये हकीकत है कोई फसाना नहीं, कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है कोई फसाना नहीं, कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, जितने रिश्ते थे सब अजनबी हो गए। जैसे हटी कार से, जितने रिश्ते थे सब अजनबी हो गए। जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे। मक्ता पेश करती हूँ बतौर खास, देखें ऐ शबीना यही है यहाँ का चलन, चोट दिल पर लगे तो निखरता है फन। बहुत शुक्रिया। ऐ शबीना यही है यहाँ का चलन, चोट दिल पर लगे तो निखरता है फन। मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं, मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं। मेरे गम ही मेरी शायरी हो गए, मैं ख्यालों के जंगल। पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, बस आपकी जिम्मेदारी है। सीधे सीधे पढ़ती हूँ, पढ़ना कुछ और था लेकिन आपने हुक्म दिया है तो मैं वही पढ़ती हूँ। सुने खामोश लब है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह, बहुत शुक्रिया। मुझे खामखा मैंने वो गज़ल पेश कर दी आपकी खिदमत में। बहरहाल चलिए, शुक्र है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। वाह 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 वाह। है, बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुनाती हूँ, अभी अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बतौर खास जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं, एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। सुने, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। वाह 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 वाह।
अरे बहुत वसीम शुक्रिया। साहब का दे रहे हैं शबीना साहिबा, वाह 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 वाह। मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर, और हमेशा उनकी दुआएं मुझे नसीब होती है। उनकी दुआओं की बदौलत, आपकी दुआओं की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे भी हैं। खामोश लब है, बहुत शुक्रिया, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मैं बहुत छोटी थी, आज भी छोटी हूँ, हमेशा छोटी रहूँगी। लेकिन जब मैंने अपनी शायरी का सफ़र शुरू किया तो हमारी तहजीब में हमारा कल्चर ये हुआ करता था कि जब हमारे ये सीनियर लोग बैठे होते थे तो हम जाकर बिल्कुल पीछे बैठते थे। लेकिन आज आलम ये है हमारे स्टेज का, हमारे डाइस का, हमारे मंच का, कि बड़े लोग बैठे होते हैं और अभी कल के आए हुए कुछ शायर इनके आगे बैठते भी हैं, और कभी कभी तो इनके शेर इनके सामने पढ़कर चले जाते हैं और आप उस पर वाह वाह करके चले जाते हैं। मैंने सोचा इस सच को मैं आपसे शेयर करती हूँ और पढ़ने की हिम्मत मैं आपसे मांगती हूँ। अगर मैं सच कह रही हूँ तो इस सच की तायीद चाहती हूँ आपसे कि